Okay, first, very good afternoon to all, and I'm very privileged to be here. मेरे बॉस सीनियर डॉक्टर दानिश कुरैशी हैं, बॉस रवि बॉस हैं. तो वी हैव वेरी लॉन्ग एंगेजमेंट सिंस लास्ट 4 to 5 years बैक. बॉस मेरे साथ नीम्स में भी थे और डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी से since 2012 I was associated when was the Dr. Zafar sir was the HOD, Dr. Pushpavati Jain ma'am, Dr. Anusha Vora ma'am is there, Shipra ma'am is there. So means it's kind of a parent institute of mine, okay, कि जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा for the particularly in the pharmacology as well as the during that period I had to do lots of trials and so little bit of mine. I was associated in the field of clinical research since 2008. I was done my post graduation diploma in clinical research from Birla Institute of Scientific Research, okay, जो Statue Circle पर जो institution है, okay. And after that I was first initiated my job as a research associate from the same institution, Mahatma Gandhi Medical College. Thereafter I have done so many clinical trials, clinical research, phase 2, phase 3, phase 4 studies, approximately more than 40 clinical trials in various indications. Majority of the indications are related to the endocrinal disorders, diabetes, hypertension, thyroid, obesity, ISD, ischemic heart disease, cardiovascular diseases, and many more. Okay, so today is basically the World Clinical Trial Day, 20th May. Okay, so on that occasion I'm just giving you a very brief idea how's the clinical trials, what is the whole procedure from the means what is the whole journey of a single drug from initiation to the post marketing, और कि मार्केट की एक सिंगल मॉलिक्यूल के इन्वेंशन से लेकर मार्केट में आने तक में उस पर्टिकुलर ड्रग का, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल से ड्रग बनने तक का जो जर्नी है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, हाउ कैन वी benefited and how can we approach and how can we get our responsibility to in terms of the clinical trials or clinical research. Okay, so now getting to the drug discovery and development. Okay, so how the drug discovery is started and how the journey is initiated. Okay, so the drug discovery basically a single molecule, okay, एक particular एक single molecule को पूरा journey हमारा complete करने के लिए approximately, okay, not an exact year or not an exact time, it is just an approximate year, approximately 12 years will be there, okay, is there. टू फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी ड्रग की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज मेलाइटिस की बात करते हैं, मेटफॉर्मिन की बात कर लें, पैरासीटामोल की बात कर लें, किसी भी ड्रग की बात कर लें, दैट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम, ओके, कि अगर हम पूरा सिस्टम से चल रहे हैं, पूरी रेगुलेशन से चल रहे हैं, तो आपको सिंगल एट डे 1 से लेकर उस ड्रग को मार्केट करने में कम से कम भी 12 साल, एटलीस्ट 12 ईयर्स का टाइम आपको लगे. मे बी सम काइंड ऑफ ड्रग्स आर हैविंग लेसर देन एंड मे बी सम ऑफ देम हैव मच मोर, ओके. And approximately the money spent, the $300 million are the approximate cost of a single drug from initiation to the marketing. ओके, कि कितना रिसर्च के अंदर कितना पैसा खर्च होता है, सारी चीज़ें आप ये है जिसमें आपके रेगुलेटरी, आपके रेगुलेशंस जितने भी आप फॉलो कर रहे हैं उन सब का कॉस्ट आ जाएगा, कंटिजेंसी कॉस्ट आ गया आपका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आ गया आपका, जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं उनका कॉस्ट आ गया आपका. ओके, द होल कॉस्ट विल बी देयर अप्रोक्सीमेटली $300 million. So how the journey is started? Okay, it is just a very basic phenomena or basic thing. Okay, so now the means जो normally हम किस तरीके से करते हैं कि there are some kind of stakeholders which are involved. Okay, stakeholders in terms of majority of the stakeholders, अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइडली बात करें तो majorly stakeholders are the pharmaceutical companies. Okay, क्योंकि जिनका सीधा बिल्कुल रिलेशन है ड्रग्स को मार्केट करने में, क्योंकि पूरा रेवेन्यू उनका उसी पर बेस है. ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेंशंस और मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च एंड रिलेटेड एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज. ओके, other than that having the government research agencies like for example if we are talking about the Indian concern, the Indian Council of Medical Research, ICMR, Department of Biotechnology, DBT, CSI.
गवर्नमेंट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट तो जिस फंडिंग एजेंसीज हैं, रिसर्च एजेंसीज हैं लाइक ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSRI, DST, Department of Science and Technology, Department of Health Research. So these are the some of the agencies who are having involving to get the government fundings or to do kind of these kind of research. Okay. Other than that, the majority of the things are related to the pharmaceutical companies. Okay. Pharmaceutical companies, Glenmark, Zydus, Dr. Reddy's, Alembic, Sanofi. There are long list of that. Okay. So what happened? They are having basically their own research and development setup. Okay. R&D department होता है. So might be you all are having with the part of that. Okay. In future आप जाते हैं तो मेजोरिटी ऑफ दे हैव टू बी टेक द मेडिकल फिजिशियंस. ओके, MBBS MD जो लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. ओके, एज अ हायर पोजीशन. ओके, इन मेडिकल कंसर्न पोजीशंस. ओके, एंड if we are talking about the clinical research, so you are also be the part of that. So as a principal investigator, क्योंकि जो भी ड्रग पर अगर स्टडी करना है, हमें ट्रायल करना है, so that the person he is having that particular subject specialty. Like अगर डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें तो हम तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी स्पॉन्सर हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स है, तो उनकी पहली अप्रोच होगी कि द पर्सन शुड बी द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. ओके, या मेडिसिन का कोई बंदा होना चाहिए कि दोज हु आर हैविंग द गुड पेशेंट पूल ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, या फिर हाइपरटेंशन की बात करें या थायराइड की बात करें, किसी भी बात करें. ओके, सो द जर्नी इज स्टार्टेड विद द टारगेट सिलेक्शन. ओके, कि कहीं से भी जब भी कभी इन्वेंशन होता है तो इन्वेंशन इज इन दैट there is a one point you have to be keep in your mind to that target identification. Target identification in terms of the particular disease or disorder, कि हम किस पर हमें स्टडी करना है, किस पर हमें ट्रायल करना है, और व्हाट इज द डिमांड ऑफ दैट टाइम. ओके, जैसे अभी कोविड की बात, कोविड में अपने सबने देखा कितना कोविड वैक्सीनेशन. ओके, तो सब ट्रायल्स पहले इतना अवेयरनेस नहीं था क्लिनिकल ट्रायल्स का या क्लिनिकल रिसर्च का. जब से कोविड का आया तो कोविड के बाद में सबको पता लग गया कि हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स भी कोई चीज़ होती है. ओके, सो इसी दैट डिमांड द कोविड पेंडेमिक था, तो पेंडेमिक, ड्यूरिंग द पेंडेमिक वी नीड दैट वैक्सीनेशन. ओके, कि इससे पहले था कि कोई स्टडी चल रहा होगा, ये चल रहा भी होगा तो वैसे रन कर रहा होगा कि हाँ कि अभी फेज में है, आराम से कर लेंगे, कुछ थोड़ा सा टाइम चलेगा. ओके, बट जैसे ही डिमांड बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड बढ़ते ही तो सब चीज़ें, सबकी आंखें खुल गई. ओके, गवर्नमेंट की भी आंखें खुल गई, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, जो वैक्सीनेशन मेजोरिटी डेवलप करती हैं, उनकी भी आंखें खुल गई कि देयर इज एन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अस. ओके, ऑब्वियस सी बात है कि ये की वैक्सीनेशन की अगर एक बार की तो सब में होड़ लग गई कि सबसे पहला वैक्सीनेशन कौन निकालेगा. ओके, सो देयर इज अ सीरम इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, जाइडस ने निकाला. ओके, रशिया ने पहला वैक्सीनेशन निकाला, तो जो पहला वैक्सीनेशन निकालेगा ही इज द पायनियर ऑफ दैट वन. ओके, तो इस तरह से ठीक है, और फिर उससे जितना रेवेन्यू वो गेट करेगा, दैट इज वी कांट एक्सपेक्ट दैट रेवेन्यू. ओके, तो आप ये सब चीजें देखिए, ये छोड़ो, चलो वैक्सीनेशन की बात है, बाबा रामदेव को तो नाम सुना ही आपने, पतंजलि. ओके, एक स्टडी हुआ था क्लिनिकल ट्रायल्स, हमारे वहीं पर ही हुआ था बेसिकली. सो दैट इज basically that is a study. It was just a kind of a drug related to the immunomodulator. Okay, not only just to reduce the kind of a things which is related to the COVID-19 particular infection. Okay, it's just a लेकिन उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि it is particularly effective in the COVID-19. Okay, तो जिनको पता नहीं था, क्योंकि पीरियड ऐसा है, ओके, कि जिसमें आप कुछ भी ले रहे हैं, ओके, आपको 5 दवाइयां दी जा रही हैं, 6 दवाइयां दी जा रही हैं, एक साथ 3 एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, आप ले रहे हैं बगैर जस्ट फॉर द प्रिवेंशन, कि आपको बचना है किसी भी कंडीशन में, कि अगर ये नहीं लेता हूँ, चलो यार ये नहीं लूंगा, कुछ तो मिल रहा है, ठीक है, तो आप वो ले रहे हो. तो अब आप यकीन नहीं मान सकते कि चलो वो तो आयुर्वेदिक कैटेगरी के अंदर है, फार्मास्यूटिकल का तो फिर भी पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको उस ड्रग को मार्केट करने के लिए इतनी रेगुलेशन आपको फॉलो करना ही होगा. ओके, देयर इज सर्टेन गाइडलाइंस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फॉर द एलोपैथिक ड्रग्स. ओके, बट आयुष के लिए, आयुर्वेदिक ड्रग्स के लिए उतना जो गाइडलाइन है वो स्ट्रिक्ट नहीं है. ओके, तो क्या हुआ, मार्केट होने के बाद में द ड्रग काइंड ऑफ दैट ड्रग की एक कैप्सूल था, एक ऑयल था, उसको डालना कि अनफ्लोट, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल जैसे कि बहती गंगा में सब हाथ धो लो. ओके, तो इतना जिसका अमाउंट, जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा कि वी कांट एक्सपेक्ट दैट वन. ओके, तो सेम थिंग, तो टारगेट selection is basically the disease identification. Okay, so the first we have to select a disease to be treated.
Okay, then they select the biological target playing an important role of the disease like an enzyme or receptors. Okay, जब हमने target select कर लिया, target for example we selected diabetes mellitus. Okay, so we have to be studied about that. Okay, कि diabetes mellitus के what is the history of the diabetes mellitus, what kind of the drugs which is earlier uses, currently uses, what are the perspective of that, what kind of enzymes, what kind of receptors are involved. Okay, what are the mechanism of action, what are the adverse effects of that one. Okay, so we have to be studied all that one. Okay, and then we have to be find out some kind of a lacuna over there. Okay, कि इस पर्टिकुलर ये ड्रग है, फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन की बात कर रहे हैं, ग्लिमेप्राइड की बात कर रहे हैं, या ग्लिटाजार्स की बात कर रहे हैं, ग्लिप्टिन्स की बात कर रहे हैं, इंसुलिन की बात कर रहे हैं. सो देयर इज समथिंग काइंड ऑफ अ लैक्यूना ओवर देयर इन अ सिंगल ड्रग ऑन एवरी ड्रग. ओके, कि आप हर फार्माकोलॉजी आप पढ़ ही रहे हैं सब. ओके, तो आप देखते हैं कि हर ड्रग्स में कि देयर इज सम काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ओवर देयर. ओके, कि आप कुछ भी नहीं है तो नोजिया वोमिटिंग तो सभी में है. Okay, so there is something in every single drug. Okay, so we have to be studied over there. Okay, कि हम पूरा स्टडी करेंगे, देखेंगे where is the lacuna. Okay, and then we have to be work on that particular lacuna. Okay, कि इस ड्रग की वजह से कि अगर हम ये आइडेंटिफाइड कर लेते हैं तो it may be the chances of that adverse effects may be less or may be lesser than that earlier one. Okay, so we have to be focused on that. Then we have to be go with the second phase, that is the lead selection in terms of the lead molecule selection. Okay, we have to be identify thousands of molecules. Okay, thousands of molecules were studied, thousands of molecules were identified. Okay, out of those molecules we have selected some of those who are having correlation between our target. Okay, तो there is a receptor कि वो रिसेप्टर से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, एंजाइम लिंक्ड है या नहीं है. ओके, देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हमारे जो टारगेट सिलेक्शन है उस टारगेट सिलेक्शन से वो मॉलिक्यूल मैच होता है या नहीं होता है. ओके, ये अभी जितना भी काम हो रहा है दैट इज द प्रिलिमिनरी फेज इन द लेबोरेटरी ओनली. ओके, कि अभी तक कहीं कोई डेटा कहीं पर बाहर नहीं गया है. इट इज जस्ट प्रिलिमिनरी फेजेस अंडर वर्किंग इन द लेबोरेटरी. ओके, so find a suitable drug to act on the biological target कि जो टारगेट हमने सेलेक्ट किया है उस टारगेट पर वो जो हमारा लीड सिलेक्शन मॉलिक्यूल है वो हमारा एटलीस्ट कुछ पार्ट हमारा उससे मैच होना चाहिए या फिर वहां पर हमारा कुछ वर्क होना चाहिए. सो थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड, मॉडिफाइड एंड टेस्टेड फॉर देयर प्रॉपर्टीज इन डिटेल्स. ओके, सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिफाइड टू मैच देयर कोरिलेशन बिटवीन द टारगेट एंड द ड्रग मॉलिक्यूल. ओके, सो नाउ कमिंग टू द, अब मैं आपको छोटा सा एक बेसिक बता देता हूँ. बेसिकली क्या है कि दो फेजेस होती हैं बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर. वन इज द प्री क्लिनिकल फेज, सेकेंड वन इज द क्लिनिकल फेज. प्री क्लिनिकल फेज क्या है कि अगर हम आज जो टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली दैट इज द एथिक्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स. ओके, ये मैं आपको साइमल्टेनियसली बीच बीच में जहाँ भी जो एथिकल इशूज, एथिकल एस्पेक्ट्स जहाँ पर भी बीच में आते हैं देन वी हैव टू बी डिस्कस अकॉर्डिंगली. ओके, सो कमिंग टू द प्री क्लिनिकल स्टडीज, जब आपका मॉलिक्यूल सेलेक्ट हो गया है, आपने देख लिया है कि यहाँ थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल थे, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में से out of 10 molecules are there which are having a some kind of a correlation between our target. ओके, कि जो टारगेट हमने सेलेक्ट किया है उससे वो कोरिलेट कर रहा है. ओके, सो देन वी गो फॉर द प्री क्लिनिकल स्टडीज आर बेसिकली द एनिमल स्टडीज. ओके, एनिमल स्टडीज है, इन विट्रो इन विवो स्टडीज हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज हैं, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज हम करेंगे, फार्माकोडायनामिक स्टडीज करेंगे. ओके, टू आइडेंटिफाई द फर्दर मोर एंड मोर. ओके, कि जब आप लिविंग टिश्यूज पर आप उसको आइडेंटिफाइड करोगे सो इट इज possible that you are getting some more information out of that. Okay, तो आपको और ज्यादा information मिलेगा. So based on that, so we have to be generate a kind of a data to ensure or to make to file that application to the government officials. Okay, कि हमें ये permission चाहिए, ये हमने study किया है. अब बात आती है हमारी regulations की. Regulations for the preclinical studies or for the preclinical testings, there are a department which is the if we are talking about the particularly Indian concerns, there is a department of environmental and forest. Okay, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट जो कि हमारी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल टेस्टिंग और एनिमल स्टडीज की जो टेस्टिंग होती है उसको रेगुलेट करता है. ओके, तो एनवायरमेंटल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर विंग है जो कि पर्टिकुलरली एनिमल टेस्टिंग के लिए हमें डेडिकेट किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट का. वो है हमारा CPCSEA. ओके,
CPCSE है basically committee for purpose to control and supervision experiments on animals. Okay, so there is a particular wing, particular department under in the department Ministry of Environmental and Forest who are looking all the details, all the testing related aspects, all the testing related regulations to be undertaken in preclinical phases or animal testing से related. Okay, जब आप सारा डेटा आप कर लेते हो साइमल्टेनियसली, पहले तो क्या है कि आप CPCSE को अप्रोच करोगे कि वी हैव सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, वी हैव सम काइंड ऑफ डेटा एंड वी वांट टू स्टडी फर्दर मोर टू पर्टिकुलर टारगेट. ओके, फिर देन दे वर स्टडीड देयर पर्टिकुलर उनका कमेटी आपका एनालाइज करेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को. ओके, फिर देन दे आर डूइंग देन यू कैन गो फॉर दैट. ओके, वो तो हो गया आपका सेंट्रली लेवल. ओके, सेंट्रली लेवल के बाद में आते हैं हमने बात जैसे स्टेक होल्डर्स की मैं बात कर रहा था आपको पहले कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशनल हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है लाइक अस, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं. ओके, अगर आप यहाँ करना चाहते हो सो पर्टिकुलरली इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज और अदर स्टेक होल्डर्स वेयर द पर्टिकुलर स्टडी इज बीन हेल्ड. ओके, सो दे आर हैविंग अ पर्टिकुलर institutional animal ethics committee. Okay, that animal ethics committee is ensure that that the project is having some kind of modality, some kind of activeness, some kind of detail which is related to, which is particularly pertaining to your target. Okay, कि जिस टारगेट पर आप काम करना चाहते हो, जो मॉलिक्यूल है वो वाकई में इस लायक है कि वो एनिमल टेस्टिंग की उसको परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए. ओके, तो इन दैट पर्टिकुलर कमेटी वी हैव देयर आर सर्टेन मेंबर्स ऑफ द वेरियस डिसिप्लिन्स लाइक एक वेटरनरी पर्सन होगा, एक बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट होगा, एक लीगल पर्सन भी होगा. ओके, एक फार्माकोलॉजिस्ट भी होगा. ओके, सो they are giving their own point of view according to his or her specialty. Okay, तो फार्माकोलॉजी वाला है तो वो अपना स्पेशलिटी दिखाएगा कि ड्रग मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट्स और हो सकते हैं. अगर उसकी कोई क्वेरी हुई तो वो फिर वहां पर जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा वो उससे अपना पूछ सकता है. इसी तरीके से वेटरनरी पर्सन है तो वेटरनरी पर्सन अपने अकॉर्डिंग वो देखेगा कि आप किस एनिमल पर ये टेस्ट करोगे कि वेदर इट इज अ रैबिट है, मंकी है, डॉग है या कोई और है. व्हाई आर यू चूजिंग दैट पर्टिकुलर एनिमल ओनली. ओके, कि आपने रैबिट ही क्यों चूज किया, व्हाई नॉट अदर्स. ओके, so they ask their own questions according to their specialty. Okay, एनिमल एथिक्स कमेटी से जब क्लियर हो जाता है तो देन वी गो फॉर द स्टडी पर अपना पूरा स्टडी आप स्टार्ट कर देंगे. ओके, पूरा स्टडी हो गया कि आप जो भी आप इन विट्रो, इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर एक्सपेरिमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी और डिपेंडिंग ऑन योर प्रोटोकॉल. ओके, कि आप किस किस तरीके से प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे. प्री क्लिनिकल टेस्टिंग यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया. ओके, जो भी फेज है 1 year 2 years, जो फेज आपका कंप्लीट होने के बाद में द होल डेटा is again submitted to the final report. The final report is submitted to the CPCSE. CPCSE जब उसको अप्रूव कर देता है, मीन्स अभी तक हम चल रहे हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट के अंडर में. ठीक है, प्री क्लिनिकल स्टडी. अब हमारा जब वहां से डेटा अप्रूव हो गया है, ओके, देन वी गो विद द ह्यूमन ट्रायल्स. ओके, देन वी आर गोइंग विद द क्लिनिकल फेज. ओके, क्लिनिकल फेज जिसको हम क्लिनिकल रिसर्च भी कहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स भी कहते हैं. ओके, तो बेसिकली क्या है कि क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल रिसर्च के लिए जब आपके पास CPCSE का अप्रूवल आ जाता है, नाउ द आवर मिनिस्ट्री इज चेंज. ओके, पहले तक प्री क्लिनिकल स्टडी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट इज रेस्पॉन्सिबल. नाउ फॉर द ह्यूमन ट्रायल्स और फॉर द क्लिनिकल फेज the Ministry of Health and Family Welfare of Government of India. We are particularly talking about the Indian concern. Okay, the government of Ministry of Health and Family Welfare is responsible. Okay, Ministry of Health and Family Welfare के अंदर particular एक department है, that is the CDSCO, Department of Central Drug Standard Control Organization. Okay, who is looking all the research related activities, manufacturing, drug का import, export, okay, stem cells. ओके, ये जितना भी रिसर्च से रिलेटेड काम होगा ड्रग से रिलेटेड वो सारा रेगुलेट करेगा हमारा CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. जिस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है उसको कहते हैं अपन DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, तो ही इज द मेन और की पर्सन हु इज हेडिंग all the related activities which is pertaining to the clinical trials, drug related, import of the drug, export of the drug, manufacturing of the drug. Okay, ये सारी चीजें जो सारा लाइसेंस जो जनरेट करता है वो हमारा DCGI के थ्रू होता है. Okay, so now the application is submitted to the Drug Controller General of India in the name of IND. IND is the investigational new drug. There is a form 44. Okay, particularly एक form 44 है जिसको आप fill करते हैं. They are basically क्या है कि इन सब चीज़ों के लिए
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यही काम करते हैं, ओके, क्योंकि देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस विच वी हैव टू बी टेकन ओवर देयर इन द फॉर्म, ओके। तो वो सारा इंफॉर्मेशन, तो दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर द फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर देयर एंड द पर्टिकुलर आर दोज आर वर्किंग फॉर पर्टिकुलर दैट देर आर द क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम CROs कहते हैं, ओके। तो मेजोरिटी ऑफ द CROs हेडेड बाय द यू ओनली, ओके। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, MD फार्माकोलॉजी, MD MBBS पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर हेडिंग बाय देम, ओके। तो because they are having more certain or more concern knowledge about the drug comparative to the non-medical person, okay. So CROs are basically the works related to all the applications कि DCGI में किस application को क्या किस तरह से float करना है, क्या क्या information को gather करना है, क्या क्या legal aspects हैं वो हमें flow करने हैं, okay. So these are the regulations, these things are done, majority are done by the clinical research organization. They have a पर्टिकुलर, अब रिसर्च CROs हैं तो CROs के अंदर भी दे आर हैविंग अ वेराइटी ऑफ डिविजन्स, ओके, क्योंकि दे आर डूइंग द क्लिनिकल ट्रायल्स एज वेल, जो स्पॉन्सर बेस्ड, जो फार्मास्यूटिकल बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, ओके, कि वही फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जाइडस कैडिला ने कोई पैरासिटामोल इन्वेंट हुआ, प्री क्लिनिकल स्टडीज हो गया, ओके। तो दे आर हैविंग अ सर्टेन डिपार्टमेंट विच आर डूइंग दिस ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल रिसर्च फ्रॉम प्री क्लिनिकल टू द एंड ऑफ द फेज, ओके। तो अब बात करते हैं CROs, तो CROs की विंग की बात कर रहे थे हम, तो विंग की बात, तो विंग में हमारे पास जैसे होते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स विंग है, तो दे आर डीलिंग पर्टिकुलरली विद द जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं और जो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो डिपार्टमेंट डील करता है, ओके। इसी की तरह से पूरा क्लिनिकल रिसर्च डिवीजन है, रिसर्च डिवीजन आर बेसिकली द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द टू डू द क्लिनिकल ट्रायल्स, ओके, कि वो अलग अलग साइट्स पर जहां भी ट्रायल्स हो रहा है उसको मॉनिटर करने का काम कर रहा है कि जो प्रोटोकॉल हमने बनाया है उस प्रोटोकॉल पर फॉलोअप हो रहा है नहीं हो रहा, अडेरेंस, पर्टिकुलर अडेरेंस विद देयर, यस और नो, व्हाट आवर द एडवर्स इफेक्ट्स आर नोटिफाइड, वेदर दे आर नोटिफाइड, यस और नो, ओके। सो दीज थिंग्स आर टू बी रेगुलेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। सो नाउ कमिंग टू द प्री क्लिनिकल की बात हो गई, अब हम आते हैं ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल रिसर्च। So clinical research are basically the systematic studies of any new compound or existing compound to identify the efficacy, safety, tolerability and the concerned adverse effect or serious adverse effect of a particular molecule, okay. So as any systematic study of a new drug or an investigational new drug in human subjects to generate data discovering for clinical purpose, pharmacological including pharmacokinetic and pharmacodynamic data, adverse effects with the objective to determine safety, efficacy and tolerance of such new drug or of the investigational new drug. तो investigational new drug के बारे में जो भी आप ड्रग मॉलिक्यूल का स्टडी कर रहे हो उसमें जो भी पोटेंशियल इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, that all the informations are generated during that phases, okay. इन फेजेस जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स के जो फेज होंगे उन फेजेस के थ्रू वो जनरेट किया जाएगा, ओके। ये दीज डेटा वी हैव टू बी जनरेटेड। अब नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। अब मेजोरिटी जो हम बोला जाता है तो मेजोरिटी ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स आर बेसिकली द 4 फेजेस, ओके, फेज 1, 2, 3 एंड 4। बट नाउअडेज और अभी 3-4 साल लास्ट 3 to 4 में there is a one phase is also identified, that is a phase 0, okay. phase 0 are basically the microdosing studies, okay. microdosing studies है, ये basically क्या है कि phase 1 का ये basically क्या फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, क्लिनिकल रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही एक डिस्कवर की गई फेज है जस्ट टू रिड्यूस देयर ओन कॉस्ट, ओके, कि उनका खुद का कॉस्ट को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए कि पर्टिकुलर एक डोज है वो हम डोज आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। तो जब हम हेल्दी वॉलंटियर जब पॉपुलेशन पे हम उनको देंगे, सो देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ एडवर्स इफेक्ट, ओके, लेस चांसेस ऑफ कि एक पर्टिकुलर टॉलरेंस जो टॉलरेटेड जो डोज है वो हमें आइडेंटिफाइड हो जाए, ओके। सो माइक्रो डोजिंग फेज 0 स्टडीज आर देंगे, ओके। सो नाउ कमिंग टू द फेज 1 स्टडीज, ओके। तो फेज 1 स्टडीज बेसिकली अब यहाँ क्या होता है phase 1 studies में, phase 1 studies basically the studies which we have to be do particularly on the healthy human volunteers, okay, कि जिनका जिस particular target के लिए हमने drug molecule identified किया है वो target selection हम वो नहीं करते हैं, okay. We have identified the normal healthy human beings जिसका उस particular disease disorder से कोई लेना देना नहीं है, okay.
अब एक चीज़ और है कि जो फेज़ 1 स्टडीज़ हैं वो इंडिया के अंदर बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं, मतलब 0.1% चांसेस हैं कि शायद कहीं होती होंगी, अदरवाइज इंडिया के अंदर फेज़ 1 स्टडीज़ नहीं होती हैं. ऑल द डेटा वी हैव टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, कि आउटर जितनी भी बाहर की कंट्रीज हैं वहां पर से ही हम ज़्यादातर डेटा वो कलेक्ट करते हैं, देन वी हैव टू बी सबमिट अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, कि फॉर फेज़ 1. तो इंडिया के अंदर जो हम स्टडीज हम करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, वो बेसिकली आर स्टार्टेड विद द फेज़ 2 स्टडीज, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4. ओके, ये हम यहाँ इनिशिएट करते हैं. फेज़ 1 का जो डेटा होता है, मेजॉरिटी ऑफ द डेटाज आर कलेक्टेड फ्रॉम द आउटर इंस्टीट्यूशन, अदर कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो नाउ कमिंग टू द फेज़ 1 स्टडीज. फेज़ 1 इज बेसिकली द अब यहाँ पर क्या है, कुछ चीजें हैं आपकी. तो बिफोर इनिशिएटिंग द फेज़ 1 स्टडी, सो there is an application which has to be submitted to the DCGI. The name is the IND, investigational new drug must be filed before initiating. Okay, तो वो क्या होता है, फिर वो दोबारा DCGI का जो पूरा कमेटी है, वो कमेटी एनालाइज करेगा प्री क्लिनिकल डेटा को, कि whether that molecule is potential yes or no, कि जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो इतना बेनिफिशियल है कि उसको ह्यूमन ट्रायल्स में किया जाए या नहीं किया जाए. ओके, सो अब हम बात कर रहे थे कि वहां पर कि थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल वर आइडेंटिफाइड. ओके, जब पहली बात की थी अपन ने, तो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो प्री क्लिनिकल में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं. तो जब एट द एंड ऑफ द प्री क्लिनिकल स्टडीज वो जो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके रह जाते हैं मुश्किल से 5 या 10. ओके, नॉट मोर देन 5 और 10 मॉलिक्यूल्स वो रह जाते हैं आपके 1000 से एट द स्टेज ऑफ एट द एंड ऑफ द प्री क्लिनिकल स्टडीज. ओके, जब आप फिर क्लिनिकल टेस्टिंग की बात करते हैं फेज़ 1 के अंदर, तो फेज़ 1 के अंदर फिर वो जो मॉलिक्यूल वो आपके रह जाते हैं मुश्किल से 3 या 4 मॉलिक्यूल, जिस पर आप अपना टेस्ट करने के लिए आपको परमिशन मिलती है. ओके, तो फेज़ 1 स्टडी में बेसिकली क्या है, अदर फेजेस और फेज़ 1 के अंदर डिफरेंस क्या है, देयर इज द ओनली मेन एंड चीफ डिफरेंस इज वी आर टेकिंग healthy human volunteers. Okay, approximately the range is between 20 to 80 human healthy volunteers we have to be selected. Okay, अब वही है ना कि healthy human volunteers, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो यार कौन जाके जबरदस्ती वो कहेगा कि भैया ठीक है भाई मेरे ऊपर टेस्ट कर लो आप. ओके, इन फॉरेन कंट्रीज FDA जैसे रेगुलर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली USA के अंदर, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है, EME है यूरोपियन कंट्रीज के लिए. व्हाट दे डू, दे आर basically publicize a kind of a vacancy, a kind of a publication or kind of a chart over there, that we have some kind of a study and we are inviting yours. Okay, those who are interested to involve to participate in that particular study. Okay, वहाँ पर ये सब चीजें इन्वाइट की जाती हैं. ओके, फिर इन्विटेशन के बाद में आप सब चीजें बताई जाती हैं कि इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, कि very detailed procedure or very important procedure to follow out of that during the whole clinical trial procedure. Okay, अभी हम बात कर रहे हैं फेज़ 1 की. ओके, तो फेज़ 1 22 healthy human volunteers were is enrolled. Okay, in the study. पर्टिकुलर टारगेट है कि इससे ज्यादा आप उसको नहीं ले सकते, कि आपको करना है तो इतना ही सब्जेक्ट पॉपुलेशन पे आपको करना होगा. डोज इज ग्रेजुअली इंक्रीज टू नो द मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू डू फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स. ओके, कि आपको एक मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज का आइडेंटिफिकेशन करना है. कि आप बेसिकली होता है माइक्रो डोजिंग की बात कर रहे थे ना अपना फेज़ 0, तो वो फेज़ 0 इसीलिए करते हैं. तो फेज़ 0 में क्या होता है कि केवल यहाँ तो आप 20 से 80, 20 to 80 सब्जेक्ट्स आप अभी आइडेंटिफाइड इनरोल कर रहे हैं. बट इन माइक्रो डोजिंग स्टडीज और फेज़ 0 स्टडीज में क्या होता है कि 12 या 15, 12 to 15 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाइड होते हैं, और वहां पर आपको एक रेशियो होता है बेसिकली 1:100 माइक्रोग्राम का. 0.1 माइक्रोग्राम, 0.1 से आपको स्टार्ट करना होता है डोज रेंज, और देन यू टू बी ग्रेजुअली इंक्रीजेस द डोज. ओके, धीरे धीरे साइमल्टेनियसली आप डोज इंक्रीज करते हैं. दीज ऑल स्टडीज आर बेसिकली द फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज. आपको हर 15 मिनट पर, हर 20 मिनट पर, हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पर आपको ब्लड सैंपल आपको कलेक्ट करना है. फिर देन यू टू बी कंपेयर द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स. ओके, और ऑल द लैब इन्वेस्टिगेशन जो भी आप करवा रहे हैं पर्टिकुलर टारगेट के लिए, तो वो सारे आपको आइडेंटिफाइड करने होते हैं. ओके, मीन दैट आर नॉट अ वेरी इजी स्टडीज और फॉर द पेशेंट और फॉर द सब्जेक्ट इट इज नॉट वेरी इजी टू सर्वाइव इन अ होल, टू कंटिन्यू फॉर अ होल फेज. ओके, क्योंकि ये होता है कि फार्माको की हर आप 1 घंटा हो गया आपको, फॉर एग्जांपल 12 बजे आपको कोई ड्रग दिया गया. ओके, कोई इंजेक्ट हो गया, तो आप फिर आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 45 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स, दे आर टू बी
they have to be they have to be check your vital parameters. Okay, pharmacokinetic, pharmacodynamic studies साथ साथ में चलती रहती हैं. Okay, to identify that particular regime और particular जो हम identify करना चाह रहे हैं कि lab investigation में क्या changes आ रहे हैं. Okay, whether it dose is not a lethal dose, कि toxic effect तो नहीं आना start हो गया है. Okay, so then we have to be gradually increases the dose. आपको एक डोज रेंज मिल जाता है कि जहां से बाद में आपके जो पैरामीटर्स हैं वहां पर आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखने लग जाएंगे. ओके, मींस दीज चेंजेस आर टू बी एक्सपेक्टेड टू बी टॉक्सिक फॉर द सब्जेक्ट, सो वी हैव टू बी स्टॉप ऑन दैट. ओके, सो वी व्हाट वी डू, सो वी हैव टू बी आइडेंटिफाइड अ डोज रेंज. ओके, कि हमें एक डोज रेंज मिल गया है कि हमने 0.1 से स्टार्ट किया था और 0.5 आते आते देयर इज ए पैरामीटर्स के अंदर हमें चेंजेस मिलना स्टार्ट हो गया. ओके, तो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे डायबिटीज मेलाइटस की, तो कोई भी ड्रग हमने दिया तो डायबिटीज मेलाइटस के अंदर आपको ब्लड शुगर आइडेंटिफाइड करो, तो ब्लड शुगर पहले आपका 180 था, फिर आपने 0.1 से स्टार्ट किया, 0.2 से स्टार्ट किया, 0.3 किया, 4 किया, 5 किया. जैसे ही आप 0.5 देते तो 0.4 तक तो कोई 180 था तो आपका 180, 182, 185 वही चल रहा है आपका. नो देयर इज नो मेजर डिफरेंस. लेकिन जैसे ही डोज 0.5 या 0.6 या 0.8 आप जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो, सो देयर इज अ डिक्रीजिंग इन अनआइडेंटिफाइड वेदर इट इज इंक्रीजिंग और वेदर इट इज अ डिक्रीजिंग. ओके, सो मीन यू हैव टू फाइंड मतलब ग्रोथ चेंजेस ओवर देयर. ओके, तो आप एक बड़ा चेंज आपको मिलने लग गया है वहां पर, सो देन यू हैव टू बी find a suitable dose or find a identical dose for the further studies. Okay, तो same thing is there. तो यहाँ जो phase 1 studies है, phase 1 study का जो main and basic objective होता है to identify the maximum tolerated dose or a tolerability. Okay, tolerability and simultaneously safety and efficacy is always there. Okay, so the same thing. अब हम clinical phase 1 हमारा complete हो गया है. क्लिनिकल फेज कंप्लीट होने के बाद में आप ये अगेन द होल इंफॉर्मेशन विल बी इज गैदर्ड. पूरा एप्लीकेशन बनेगा आपका, पूरा एप्लीकेशन जो भी डेटा, कितना पेशेंट आपने लिया, कितने पेशेंट्स पर ये ड्रग स्टडी की गई, क्या क्या पैरामीटर्स देखे गए. ओके, व्हाट आर द चेंजेस ड्यूरिंग दैट फेज, क्या क्या आपको ग्रोथ आइडेंटिफिकेशंस आपके पर्टिकुलरली आपको मिले हैं रिलेटेड टू योर टारगेट. ओके, व्हाट आर द मेजर एडवर्स इफेक्ट और व्हाट आर द सीरियस एडवर्स इफेक्ट इज आइडेंटिफाइड, कि कुछ सीरियस एडवर्स इफेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर माइनर हुए हैं तो वो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हैं, कि कुछ स्किन से रिलेटेड है, हाइपरसेंसिटिव टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हुए हैं, अर्टिकेरिया है, प्लूराइटिस है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, अल्सर है, कुछ तो वही होगा, ऑब्वियस सी बात है. तो ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाइड करते हैं और कंपाइल करते हैं डाटा, एंड अगेन the application and the again is file is submitted to the Drug Controller General of India. DCGI को सबमिट की जाती है. DCGI फिर वही दोबारा आपका पूरा जो सेल है, कमेटी है, वो आपका एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा और आइडेंटिफाइड करेंगे कि वेदर इट इज परमिसिबल फॉर द नेक्स्ट फेज, यस और नो, ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा और द प्री क्लिनिकल एज वेल. द प्री क्लिनिकल डेटा, फेज 1 डेटा के बेसिस पर आपको फिर फेज 2 डेटा की आपको परमिशन मिलती है. ओके, सो दैट इज अबाउट द फेज 1 स्टडीज. नाउ कमिंग टू द फेज 2 स्टडीज. ओके, फेज 2 फेज फेज 1. अब हम बात करते हैं, अभी तक हम बात की फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स आर ऑन द हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स. ओके, हमने वहां पर मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज हमें आइडेंटिफाइड हो गई है. ओके, कुछ पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट निकल कर आए हैं, वो भी हमें आइडेंटिफाइड हो गए हैं. ओके, अब आप यहाँ क्या करते हैं, फेज 2, जब आपको फेज 2 की जब आपको परमिशन मिल जाती है तो फेज 2 की परमिशन के अब व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स टू डू फेज 2 trials or phase 2 clinical research. Okay, the major objective is phase 2 clinical trials are the efficacy of a drug as well as the safety of the drug. Okay, the major concerns we have to be focused on the effectiveness, efficacy of the drug, the how की whether the drug जो target हमने select किया है diabetes mellitus, okay, for whatever, okay, जो target हमने select किया है उस target पर इस ड्रग का कितना इफेक्ट, कितना फ्रूटफुल इफेक्ट, वट एवर वी नीड, वट एवर वी वॉन्ट, ओके, जो हमें डिजायर्ड इफेक्ट है वो डिजायर्ड इफेक्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. ओके, टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट वन. ओके, तो फेज 2, अब फेज 2 में वहां पर हमें जो फेज 1 के अंदर हमारा सब्जेक्ट पॉपुलेशन था, तो सब्जेक्ट पॉपुलेशन इज बिटवीन 20 to 80. ओके, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो पॉपुलेशन है वो इज इंक्रीजेस बाय 100 to 200 और मोर 250 और 300. ओके, डिपेंडिंग ऑन. ओके, तो मेजोरिटी ऑफ द जो ट्रायल्स अभी तक जितना भी हुआ है, जहाँ जितना मैंने अभी ऑब्जर्व किया है, तो फेज 2 ट्रायल्स के अंदर जो सब्जेक्ट पॉपुलेशन है आर नॉट मोर देन द 300 और 350. ओके, 300 350 से ज्यादा सब्जेक्ट पॉपुलेशन नहीं होते हैं. ओके, इन्हीं के अंदर आपको स्टडी करना होता है.
to ascertain the mainly the efficacy and also know the therapeutic dose as well as the adverse drug reactions. Okay, अब वहां पर हमने लिए थे हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स। फेज 2 के अंदर हमें लेना है कि जो टारगेट हमने सेलेक्ट किया है, जिस टारगेट के लिए पर्टिकुलर डिजीज को डिस्कवर किया गया है, इन्वेंट किया गया है, वही टारगेटेड पेशेंट पॉपुलेशन हमें आइडेंटिफाइड करना है कि हम डायबिटीज मेलाइटस पर कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी identify and we have to be prepare that protocol according to the diabetes mellitus। तो हम ऑब्जेक्टिव रखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में कि हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें कितना अचीव करना है। फिर हमें इंक्लूजन क्राइटेरियाज होते हैं, एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज होते हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया कि डायबिटीज मेलाइटस है तो डायबिटीज मेलाइटस का रेंज कितना होना चाहिए, कि पर्टिकुलर में एज ले लिया कि हमारे पास 18 से 50 साल के मेल फीमेल को हमको लेना है। 50 उसमें भी ये है कि डायबिटीज का जो ब्लड शुगर का जो रेंज है हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो ब्लड शुगर का रेंज आपका 150 से 250 होना चाहिए या फिर मोर देन दैट होना चाहिए। ग्लाइसेडेड हीमोग्लोबिन का लेवल 7.5 से ऊपर होना चाहिए, 6.5 से ऊपर होना चाहिए। ओके, अदर जो वाइटल पैरामीटर्स है कि बीपी इतना होना चाहिए, ओके, लिपिड्स वगैरह जो लेवल हैं वो इतना होना चाहिए। ओके, दीज आर द क्राइटेरिया। सो दीज क्राइटेरिया आर बेसिकली हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द सुटेबल सब्जेक्ट विच इज completely underwent or which is completely undergone with our trial protocol। ओके, कि जो हमारे स्टडी के अकॉर्डिंग जो सुटेबल हैं और वो बिल्कुल फिट बैठे हैं हमारे अंदर। ओके, तो अब होता क्या है, देखो बेसिकली फेज 1 ट्रायल तो चलो बाहर होती है। अब क्या होता है कि हम बात कर रहे थे कि एथिक्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स की। CROs मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस व्हाट दे डू और हाउ द होल द प्रोसीजर इज देयर, कि परमिशन मिल गया आपको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से, ठीक है ना, DCGI की परमिशन। अब करना किसको है, करना है वी हैव टू बी आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इन्वेस्टिगेटर्स एंड हु आर द इन्वेस्टिगेटर्स। इन्वेस्टिगेटर्स आर द बेसिकली द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, कि हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं या किसी दूसरे सर्जरी की बात कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा हमें कोई दूसरा हमारा इंडिकेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं, डायबिटीज की बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट जो माइंड में आएगा कि द शुड बी ही और शी शुड बी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ओके, कि वो डायबिटीज का एक्सपर्ट होना चाहिए, कि जिसके पास में डायबिटीज का सब्जेक्ट पेशेंट पूल बहुत अच्छा हो। ओके, तो रिलेटेड टू मेजरली रिलेटेड टू द फेज 2 स्टडीज आर done or are do in the major institutions। okay, major institutions लाइक अगर हम बात करें तो फेज 2 जैसे हमने की हुई यहाँ पर, जैसे महात्मा गांधी बेसिकली टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन है, कि कोई भी अगर सीरियस एडवर्स इवेंट हो जाता है ड्यूरिंग दैट स्टडी तो वी हैव टू बी मैनेज दैट वन। ओके, तो बेसिकली क्या है, जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो टारगेट करती हैं अच्छे इंस्टीट्यूशंस को, टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन। जिसकी फेज 2 की पर्टिकुलरली बात करें तो जैसे कि एम्स हो गया, PGI हो गया, जिपमर पौंडीचेरी हो गए, KEM मुंबई हो गए। ओके, इस तरीके से जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, इनको वो मेन जो टारगेट होते हैं कि इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि दे आर हैविंग the more patient pool comparating to the others one। okay, and the investigators are having more firm sound to that particular subjects are comparating to the other than that। okay, जैसे कि हम बात करें कि SMS की, अभी होता ही है ना कॉमनली कि कॉमन एक माइंड है कि कौन सा डॉक्टर अच्छा होगा, कि ऑब्वियस सी बात है कि जो SMS में काम कर रहा होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि वो एट ए टाइम एक दिन में ही वो 100 मरीज देख रहा है, 100 पेशेंट देख रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि 100 पेशेंट देख रहा है तो दे आर हैविंग मोर एक्सपीरियंस कंपैरेटिंग टू द अदर देन। ओके, कि जो एक बंदा है कि वो एक दिन में 5 मरीज देख रहा है या 10 मरीज देख रहा है और एक दिन में जो बंदा 100 मरीज देख रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी नॉलेज और उसकी जो होगा वो ज्यादा होगा। सो वी हैव टू बी टारगेट द मेजर इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो एम्स, जिपमर और जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, वो टारगेट होते हैं पर्टिकुलरली फॉर द फेज 2 स्टडीज। ओके, फेज 2 स्टडी हो गई हमारी, द पेशेंट पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 or 300। ओके, एंड मेनली द एफिकेसी ऑल्सो द थेरेपेटिक डोज एज वेल एज द एडवर्स इफेक्ट। ओके, ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब एक छोटी सी चीज, अब एथिक्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स की बात कर रहे थे अपन, जो कि आपके फेज 1 से लेकर फेज 4 तक आपकी फॉलो करेगी। व्हाट आर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स। ओके, कि क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व हैं, फ्रॉम इनिशिएशन टू द फर्स्ट साइंटिस्ट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन में जो बंदा स्टडी कर रहा है और स्टडी के अंदर जो भी स्टाफ इन्वॉल्व है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट कंसर्न्स विद द ह्यूमन लाइफ। ओके, कि एक बंदे की पूरी लाइफ से रिलेटेड जुड़ा हुआ ये कंसर्न है कि अगर कुछ भी मिसहैपन होता है, ओके, कुछ भी मिसहैपन होता है, वेदर इट इज अ सीरियस और वेदर इट इज अ माइनर, ओके, दैट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। ओके, सो देयर इज अ सर्टेन गाइडलाइंस। ओके, DCGI CDSCO है, CDSCO ने पूरा एक गाइडलाइन इशू किया हुआ है
इससे पहले जब था 2019 से पहले एक शेड्यूल वाई करके एक पूरा शेड्यूल था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि हमें पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि आपको क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं. ओके, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेक होल्डर्स, की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उस रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, उसमें हमने बात की थी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी. ओके, कि जब हम एनिमल टेस्टिंग कर रहे थे तो उस एनिमल एथिक्स कमेटी का क्या कंपोजिशन होना चाहिए, कौन कौन से लोग उसके अंदर होने चाहिए, व्हाट दे डू. ओके, कि वो उनका क्या फंक्शन है, पर्टिकुलर हर बंदे का क्या फंक्शन है, ये पूरी तरीके से डिसाइड किया हुआ है. एंड वी हैव टू बी 100% adherence to follow those guidelines. Okay, so phase 2 phase 1. अब वहां हमने बात की थी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी की. द एथिक्स कमेटी इज having responsibility to do the to evaluate the protocols which has to be concerned related to the animal testing. Okay, now we are in the phase of human trials. Okay, the direct main to main or direct human life is involved. Okay, so we have a institutional ethics committees. Okay, that is also registered under the Ministry of Health and Family Welfare, जो CDSCO हमने डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर हर एथिक्स कमेटी का रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी कर दिया गया है सिंस लास्ट 2013. ओके, 2013 के बाद, 2013 के बाद में इसके पहले तक कंपलसरी नहीं था. ओके, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट आर द रीजंस, 2013, 2012, 2012, 2013 देयर वाज सम काइंड ऑफ अ मिस हैपेंड. क्योंकि क्या होता है कि जैसे बिल्कुल मैं जनरली आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि यू आर प्रोबेबली यू आर डेफिनेटली यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ रिसर्च और यू आर हैविंग इन्वॉल्व विद द क्लिनिकल ट्रायल्स इन योर, जब भी आप फिजिशियन बनेगा, कोई सर्जन बनेगा, कोई ऑर्थोपेडिशियन बनेगा. ओके, देयर इज अ डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ ह्यूज मनी. ओके, क्योंकि पर्टिकुलर जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स जिन्हें अप्रोच करती हैं, जैसे कि महात्मा गांधी फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि कोई डायबिटीज का कोई मॉलिक्यूल इन्वेंट हुआ. ओके, मेटफॉर्मिन का हुआ कि मेटफॉर्मिन पर हम स्टडी करना चाहते हैं, फेज 1 का डेटा हो गया है, फेज 2 पर स्टडी करना चाहते हैं. आपने एक मेडिसिन से बंदा लिया या एंडोक्राइनल डिजीज बंदा लिया कि हाँ ही इज अ गुड पोटेंशियल, ही इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड ही इज हैविंग व्हाटएवर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज वेल एज द research related qualification. Okay, he knows the clinical trials, what are the roles and responsibilities, ये सब चीजें बंदे को पता है, हम आइडेंटिफाई कर ले, सुटेबल आइडेंटिफिकेशन हो गया. ओके, सो देन फार्मास्यूटिकल कंपनीज व्हाट दे डू, दे आर गिविंग सम काइंड ऑफ अ मनी. ओके, कि हमारा ये स्टडी प्रोटोकॉल है, इसमें हम आपको पर पेशेंट आपको 1 लाख रुपए देंगे. ओके, तो क्या हो गया, एक काइंड ऑफ एक हो गया ना कि एक तरह से एक कि हाँ यार कि इसमें मुझे कि पेशेंट तो मैं देख ही रहा हूँ कि साथ साथ में अगर ये हो जाएगा तो थोड़ा सा पैसा और बन जाएगा. ओके, सो फॉर दैट पर्टिकुलर कंसर्न. ओके, तो अभी तो क्या हो गया है, मैं जो बात कर रहा था आपसे 2013 की, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन. ओके, तो क्या था कि एक शायद इंदौर या भोपाल के अंदर एक इंसिडेंस हुआ था, बेसिकली द प्रीमेच्योर एजुकेशन का स्टडी था अंडर द साइकेट्रिस्ट. दैट ड्रग वाज गिवन टू द मेंटली चैलेंज पर्सन्स. ओके, प्रीमेच्योर एजुकेशन की ड्रग थी, टेस्टेड ड्रग थी, टेस्ट कर रहे थे, उन पर्टिकुलर पेशेंट पर होना था, बट दैट साइकेट्रिस्ट आर गिवन टू द अदर पेशेंट दोज हु आर नॉट हैविंग. ओके, तो दूसरे जो मेंटली इल पेशेंट को दे दी गई और उसको देने के बाद में अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 लोगों की जो डेथ हो गई, उसके अंदर सीरियस एडवर्स इवेंट हुआ. एंड दैट इश्यूज विल बी हाइप एंड राइजेस बाय द मीडिया. मीडिया के अंदर ये इशू आ गया, तो अब वही तो है ना, मीडिया तो आपको एक छोटा सा कंसर्न दिखाएगा. ओके, कि हाँ वो तो ये हेडलाइन दिखाएगा कि हाँ ट्रायल्स में इतनी लोगों की मौत हो गई. ओके, उसके पीछे की कहानी नहीं दिखाएगा. ओके, बट व्हाट आर द मेजर थिंग्स कि 2013 में क्लिनिकल जो एथिक्स कमिटीज थी उनको रजिस्ट्रेशन करने का कि ये सब चीजें क्यों शुरू हुई. ओके, सो देयर इज अ रीजन. ओके, कि व्हाट द रीजन, बिकॉज ऑफ दोज. तो फिर क्या हुआ कि 2013 फिर जब ये मिस हैपन हुआ तो ऑब्वियसली बात है फिर मीडिया को तो एक वो चाहिए होता है, तो फिर जहां जहां पर भी दूसरी स्टडीज चल रही थी फिर वहां पर जाकर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की. सो देयर आर अ ग्रोस मिस्टेक्स वर फाइंड आउट. ओके, बाय द मीडिया पर्सन्स, बाय द रेगुलेटरी एजेंसीज. की फिर क्या था कि रेगुलेटरी एजेंसीज जो DCGI थी, तो DCGI ने भी फिर अपना ये इंस्पेक्शंस जो थे वो स्टार्ट कर दिए. ओके, तो फिर वो हुआ कि जो प्रोटोकॉल था कि उस प्रोटोकॉल पर जो रेगुलेशन, जो क्राइटेरियाज हैं वो क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं हो रहे हैं. ओके, जो
पेशेंट्स को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, ओके, जो पेशेंट को जो जस्टिस मिलना चाहिए, जो पेशेंट्स की जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो पेशेंट को जो बेनिफिशियंस होने चाहिए, वो पेशेंट के कहीं नहीं हो रहे हैं, ओके। ये बस पूरा क्या था कि एक पूरा मनी गेम बन के रह गया है, दैट इज नॉट द, एक रिसर्च ना होके एक पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है, ओके। सो तो उसके बाद में थोड़ा सा और विजिलेंट हुई रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ओके। तो फर्स्ट दे हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। अब ये बता देता हूं कि इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती क्या है। तो सेम थिंग इज लाइक इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। तो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी इज ऑल्सो basically a group of persons of various disciplines, okay, which has to which they have to be review that study protocol at that institutions, okay, कि जो भी अंडरगोन जो भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी स्टडी हो रहा है, ट्रायल हो रहा है, उसको पूरा उनको रिव्यू करना है और अपनी अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग उनको ओपिनियन देना है, ओके, वेदर इट इज अप्रूव्ड और वेदर इट इज फ्रूटफुल और वेदर इट इज नॉट, ओके। तब क्या होता है, कंपोजिशन कैसा है, कंपोजिशन में क्या है, certain members are various disciplines like basic medical scientist। तो basic medical scientist में फार्माकोलॉजिस्ट हो सकता है, प्रेफरेबली फार्माकोलॉजिस्ट, एनाटॉमी का भी बंदा हो सकता है, फिजियोलॉजी का भी हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री का भी हो सकता है, बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट। क्लिनिशियन इज देयर, क्लिनिशियन पीडियाट्रिशियन हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, सर्जन हो सकता है, गायनी वाला पर्सन हो सकता है, ओके। बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट हो गया, क्लिनिशियन हो गया। फिर इसके बाद में आता है हमारा लीगल एक्सपर्ट। लीगल एक्सपर्ट द पर्सन इज हैविंग द एडवोकेट और काइंड ऑफ LLB काइंड ऑफ अ डिग्री, हु इज लुकिंग और हु इज हैविंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू evaluate the things are related to the patient legal aspect, okay, कि जो स्टडी चल रहा है, जो स्टडी होगा, उसमें पेशेंट की लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं, लीगल जो रेस्पेक्ट है, वो हमारी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल स्टडी के ड्यूरिंग में अगर कोई भी मिसहैपन हो जाता है, कि फॉर एग्जांपल ड्रग ले रहा है, ड्रग लेते इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, एडमिट हो गया पेशेंट, ओके, मिसहैपनिंग हो गया, चाहे वेदर इट इज रिलेटेड और नॉट, दैट इज अदर कंसर्न, कि वो बात की बात है कि उसको देखेंगे कि वेदर इट इज रिलेटेड टू द ड्रग, यस और नो, ओके, कि वेदर कॉजलिटी असेसमेंट होगा कि उस ड्रग से हुआ है या नहीं हुआ है, वो बात की बात है। बट लेकिन अभी तो MI हो गया, ओके, और ड्यूरिंग ट्रायल हुआ है, ओके, कि ये आपकी ड्रग भी ले रहा था और दूसरी ड्रग भी ले रहा था, जो आपकी प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहा था। तो व्हाट हैपनिंग और व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट स्टेज, कि उस टाइम पर उस पेशेंट को वो रेस्पेक्ट, वो जस्टिस, वो बेनिफिशियंस मिलेगा या नहीं मिलेगा कि जो उसको रिक्वायर्ड है, ओके, कि जैसे MI हुआ तो उसका पर्टिकुलर, तो लीगल एक्सपर्ट्स आर हैविंग प्रोटोकॉल जब हम स्टडी करते हैं, सो देयर इज अ इंश्योरेंस लायबिलिटी, एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस लायबिलिटी होती है, दोज आर कवर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द पेशेंट्स हु आर हैविंग एनरोल्ड ड्यूरिंग होल स्टडी, ओके, कि 10 पेशेंट अगर हमने एनरोल्ड किए हैं तो उन 10 के 10 पेशेंट का इंश्योरेंस होता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इन्फॉर्म कंसेंट सिग्नेचर, कि जिस दिन वो सिग्नेचर कंसेंट साइन कर देता है, उस सिग्नेचर की टाइम से लेकर के 12 बजे उसने साइन किया है, तो 12 बजे से उसका जो इंश्योरेंस कवर है वो शुरू हो गया है, ओके, एंड दैट कवर इज अंटिल द ट्रायल इज कंप्लीटेड, ओके, कि जब तक कि पूरा ट्रायल क्लोज आउट फिनिश नहीं हो जाता है, वो इंश्योरेंस कवर उसके पास रहता है, ओके, फॉर टू मैनेज दैट काइंड ऑफ मिसहैपन, ओके। तो लीगल एक्सपर्ट जो होता है, तो लीगल एक्सपर्ट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन सब चीजों को मैनेज करे, कि वेदर द इंश्योरेंस इज इनफ, कि जितना इंश्योरेंस इसमें दिया हुआ है वो इंश्योरेंस उस पेशेंट की इन जो मेजर रेस्पेक्ट है, बेनिफिशियंस है, जस्टिस है, और जो उसे थेरेपेटिक जो थेरेपीज जो चाहिए वो जस्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस आपने करा लिया कि 10,000 रुपए का इंश्योरेंस दे देंगे, बट दैट इज नॉट इनफ, ओके, ठीक है ना, इंश्योरेंस, तो वो लीगल एक्सपर्ट उन सब चीजों को अपना देखेगा। Then the next one is the social person, okay, social person, a social worker और theologist, okay, ये एक या सोशल साइंस है या फिर एक NGO से कोई वर्कर हो सकता है, ओके, वो जो स्टडी होगी वो सोशली उसको एनालाइज करेगा, ओके, कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ, सोशल बिहेवियर, सोसाइटी, इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी कंसर्न होता है तो फिर वो अपना क्वेरी जो होती है कंसर्न इन्वेस्टिगेटर से पुट करता है और फिर उसका आंसर देता है, देन ही सेटिस्फाइड, ही शी सेटिस्फाइड, देन दैट इज ओके फॉर दैट, ओके। तो सोशल वर्कर, इसी तरीके से एक बंदा होता है, देयर इज अ ले पर्सन, ओके, ले पर्सन, देयर इज नो सर्टेन गाइडलाइन रिलेटेड टू द ले पर्सन, कि ले पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बट फॉर अस कि हमने जितनी भी एथिक्स कमेटी जितनी हमने स्टडीज की हैं, जितना देखा है, तो ले पर्सन शुड बी एजुकेटेड, ओके, शुड बी क्वालिफाइड, शुड बी ग्रेजुएट,
कुछ भी ले पर्सन कोई भी हो सकता है, ओके, बट इट शुड बी, ही और शी शुड बी अ क्वालिफाइड, ओके, कि वो ये असेस कर सके कि जो ट्रायल प्रोटोकॉल, ऑब्वियस सी बात है कि उसको जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो उसको समझ में नहीं आएगी, कि मेटफॉर्मिन की बात करें तो वो एडवर्स इफेक्ट बता रहा है या फिर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल बता रहा है कि वो ड्रग के बारे में बता रहा है, इन्वेस्टिगेटर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो अपना एस्पेक्ट जब पुट करेगा कि उसमें इन्वेस्टिगेशन में उसमें लिखा हुआ है कि जब आप पहली बार हमारे पास आएंगे, कंसेंट साइन होगा, कंसेंट साइन होने के बाद में हम आपका 20 ml ब्लड विड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब वो ये अपना फिर वो सोचेगा अपना ले अकॉर्डिंग टू दैट कि 20 ml इज इनफ, कि ये कोई ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, ओके, कि 20 ml की, फिर वो पूछेगा कि यार आप 20 ml ही क्यों ले रहे हो, आप 10 ml ले लो, 5 ml में काम चल जाए, तो फिर देन द इन्वेस्टिगेटर इज जस्टिफाइड कि नहीं, कि हमें यही इन्वेस्टिगेशंस करने और उन इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग। अब देखो बात कर रहे हैं अपन एथिक्स इन क्लिनिकल ट्रायल और मुझे 1 घंटे से ज्यादा बोलने नहीं दिया जा रहा है मैं कंप्लीट कर दूंगा, ओके। सो दैट थिंग इज देयर, ओके। तो नाउ ये हो गई, इसी तरीके से ये पूरा कंपोजिशन है एथिक्स कमेटी का। तो दे आर डूइंग दैट रोल एंड दे आर प्लेइंग देयर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंग देयर स्पेशलिटीज, ओके। सो दैट काइंड ऑफ एथिक्स शुड बी फॉलोड ड्यूरिंग दैट स्टडी, ओके। तो जब आप प्रोटोकॉल अपना प्रेजेंट कर रहे हैं, स्टडी आप बना रहे हैं, स्टडी आप दे रहे हैं, तो ये सब चीजें अपनी ओपिनियन ली जाती हैं, और जब तक वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका अप्रूवल नहीं होता। देन द पर्सन, द कमिटी इज सेटिस्फाइड, देन यू टू बी अप्रूव्ड एंड यू टू बी follow the procedures, okay. Now coming to the phase 3 studies. अब phase 3 वही दोबारा वही प्रोसीजर होगा जो phase 1 की एंड में कंप्लीशन हुआ था, कि दोबारा आपको वही रिपोर्ट आपका पूरा कंपाइल होगा phase 2 का डेटा, कि कितने पेशेंट पर आपने स्टडी किया, क्या क्या पैरामीटर्स आपने फॉलो किए। देन अगेन द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द DCGI, अगेन DCGI इज रिव्यूड द होल रिपोर्ट एंड देन दे हैव टू बी परस्यू फॉर द फर्दर phases, okay. तो फिर देन दे हैव टू बी परमिटेड फॉर द phase 3 स्टडीज। अब phase 3 में क्या होता है, phase 3 वहां पर हमारे पास पेशेंट पॉपुलेशन थे 300 200, ओके। यहाँ पर हमारा जो पेशेंट पॉपुलेशन साइज होता था दैट इज मोर देन 2000, ओके, मोर देन 1000 और मोर देन 2000, ओके। कि जहां पर अब वहां पर हमारे पास जो साइट्स जो हमने सेलेक्ट की थी वो 4 या 5 साइट्स थी या 6 साइट्स थी पूरा ऑल ओवर द इंडिया। यहाँ पर हम मेजरली ज्यादा साइट्स, हम मोर इन्वेस्टिगेटर्स वी हैव टू बी सेलेक्टेड, कि वहां हम 5 इन्वेस्टिगेटर थे, यहाँ पर हम कम से कम 20 से 25 इन्वेस्टिगेटर्स जो पोटेंशियल डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो हम आइडेंटिफाइड करेंगे, देन यू टू बी परस्यू दैट, ओके। लार्ज एंड मल्टी सेंट्रिक स्टडीज इन phase 3 को कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टू कंडक्ट दीज क्लिनिकल ट्रायल्स आर द सेम, द एफिकेसी ऑफ द स्टडी, द सेफ्टी ऑफ द ड्रग एंड the major adverse effect, minor and major, okay. Then again the phase 3 complete होने के बाद में safety and efficacy वही पूरा वही phase जो phase 2 phase 1 के completion पे हुआ था आपका। Then the whole report is submitted to the Drug Controller General of India, okay, DCGI, then again the review by the DCGI and then they have to be permitted for the next phase, that is the phase 4 study. Phase 4 is basically the पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस स्टडीज, ओके। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस स्टडी इसीलिए कहते हैं कि phase 3 में क्या है कि आपको परमिशन, phase 3 कंप्लीशन के बाद में आपको ड्रग को मार्केट करने के लिए परमिशन मिल जाती है, बट नॉट इन अ वाइड रेंज, ओके, जस्ट विद अ लिमिटेड एक्सेस, ओके। वी हैव आइडेंटिफाइड कि वहां पर हमारे पास कि हमने 1000 या 1000 या 2000 सब्जेक्ट्स पर ही हमने वो स्टडी किया था। देन वी नीड मोर डेटा कि जो phase 1 के अंदर निकल के नहीं आया है, जो phase 2 में निकल के नहीं आया है, जो phase 3 में निकल के नहीं आया है, कि जो 4 या 5 साल, जो लास्ट 5 या 6 साल में जो phase 1, 2, 3 का जो स्टडी हुआ है कि वहां कोई कॉम्प्लिकेशन निकल के नहीं आया, तो देयर मे बी ए चांसेस ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, कि जो कॉम्प्लिकेशन आपको 5 साल बाद, 7 साल बाद या 10 साल बाद दिखेंगे उसका पर्टिकुलर जो इन्वेस्टिगेटर ड्रग है, ओके। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस स्टडी क्या होता है कि बेसिकली द ड्रग आर अंडर इन द मार्केट, okay, but with the limited access, okay. We have to be identify the certain कि वहां पर पहले हमारे पास 1000 या 2000 थे, बट राइट नाउ वी हैव टू बी कंसर्न अबाउट lakhs ऑफ पीपल, ओके, कि हमें जो ये ड्रग का जो एफिकेसी एंड सेफ्टी आइडेंटिफाइड करना है, तो वी हैव टू बी करीब 1 लाख या 2 लाख सब्जेक्ट्स होंगे कि जब हम इस डेटा को और ज्यादा आप कॉन्फिडेंसली और इफेक्टिवली आप उसको शो कर सकते हो टू सबमिट द रेगुलेटरी अथॉरिटी कि हमने 1 लाख पर हमने ये phase 4 का डेटा आइडेंटिफाइड किया है एंड द ड्रग इज परफेक्ट, नो मेजर इफेक्ट और नो माइनर इफेक्ट, या फिर कोई भी छोटे मोटे को आते निकल कर, तो वो सब चीजें आप ओवरकम कर सकते हो, ओके।
तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस स्टडीज बेसिकली द फेज 4 स्टडीज। अब फेज 4 स्टडीज में वही है कि आप पेशेंट पॉपुलेशन आपका बढ़ जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पर आइडेंटिफाइड करते हैं हम इन्वेस्टिगेटर्स को, पेशेंट्स को आपने ड्रग दे दिया विद लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड डॉक्टर्स होते हैं एंड लिमिटेड स्टोर्स, लिमिटेड फार्मेसीज होते हैं जिनको ये अलॉट की जाती है कि ये ड्रग केवल यही बंदा लिखेगा और इसी बंदे के थ्रू वो इसी ही स्टोर पर मिलेगी। ओके, वाइड मतलब वाइड जो जैसे ओटीसी या दूसरा जो कंसर्न है वो कहीं पर भी इससे कनेक्ट नहीं होगा। ओके, अब बेसिकली पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस फेज का जो पीरियड होता है ये बेसिकली 3 साल का फेज होता है। बट ओके, इस 3 साल के फेज के अंदर एक रिपोर्ट होती है जिसको कहते हैं अपन PSUR। PSUR इज बेसिकली द पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट। PSUR पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट, जो क्या होता है 3 साल में, जो फर्स्ट ईयर है तो उसमें तो आपका जाएगा हर 6 महीने, एवरी 6 मंथ। ओके, फर्स्ट रिपोर्ट फर्स्ट 6 मंथ, सेकंड रिपोर्ट सेकंड 6 मंथ, फिर देन एनुअली सेकंड ईयर, देन एनुअली थर्ड ईयर। इस तरीके से 4 पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स होती हैं जो कि आपको DCGI को सबमिट करनी होती हैं। दैट इज द वर्क्स टू बी डन बाय द कंसर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज और वट एवर द स्पॉन्सर, दोज हु आर डूइंग ऑल दीज रिसर्च प्रोसीजर। ओके, फिर 3 साल बाद में जब पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट चारों सबमिट हो जाती हैं, देन अगेन the DCGI reviewed the whole procedure, whole report, and then the DCGI is permitted to full-fledged marketing or full-fledged manufacturing of that particular molecule. Okay, so that is the whole journey from a target identification to marketing of that drug. So approximately that period 10 से 12 साल is the minimum period जो आपकी ड्रग को पूरी एक जर्नी है, एक सिंगल मॉलिक्यूल को आने के अंदर, मार्केट में आने में, जो आपको मतलब पेशेंट तक पहुंचने के अंदर उसको पूरा होता है। बस एक छोटा सा एक कंसर्न हो रहा है इसमें, एक छोटी सी चीज है, दैट इज द इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर। ओके, इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर क्या होता है? इन्फॉर्म कंसेंट बेसिकली क्या होता है? देयर इज अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, कंसेंट तो आपने देखा ही है ना, हम जाते हैं, आप ये सब लेते हैं सर्जरी से पहले, आप कंसेंट सिग्नेचर कराते हैं रिलेटिव से, उसको पहले बताया जाता है कि ये सब चीजें हो सकती हैं, कि इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है, दौरा पड़ सकता है, आंख कान से दिखना बंद हो सकता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी। ओके, सो दैट कंसेंट टू बी इज साइंड बाय द जो भी उसका पर्सन का जो लीगली एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेटिव होता है। लीगली एक्सेप्टेबल समझ गए, जो कि ब्लड रिलेशन, कि उसका जो बेटा है, माँ है, भाई है, बहन है, जो भी जो, और द पर्सन इज हैविंग द इन अ कॉन्शियस वे। ओके, कि उसको किसी तरह की कोई मेंटल इलनेस वगैरह कुछ नहीं है। ओके, तो इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर, इन्फॉर्म कंसेंट बेसिकली इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज द इंफॉर्मेशन शीट एंड सेकंड वन इज द कंसेंट फॉर्म। इंफॉर्मेशन शीट क्या होती है? इंफॉर्मेशन शीट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द होल प्रोसीजर्स। ओके, इंफॉर्मेशन, मैं इंफॉर्मेशन अपना देना स्टार्ट करूंगा कि जैसे मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, कि आई एम सो एंड सो, आई एम वर्किंग हियर and I am doing this study, okay, and you are the potential subject for me, और तो ये कि मेरे स्टडी के अंदर ये प्रोसीजर्स होंगे, आपको 5 बार आना पड़ेगा, आपके मैं इन्वेस्टिगेशंस में ये करूँगा। ओके, ड्यूरिंग 5 बार जब भी आप आएंगे, अगर उसमें कहीं पर भी कोई रिस्क वगैरह होता है, कोई होता है, तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। ओके, आपका अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो मिसहैपनिंग के लिए आपके लिए इंश्योरेंस कवर आपके पास है यहाँ पर। ओके, इन केस अगर आपको कोई भी फिर भी कोई है तो एथिक्स कमेटी हमारे पास है, आप एथिक्स कमेटी में सीधा आप कंसर्न पूछ सकते हैं। ओके, so all the informations from a point 1 to लेकर जितने भी पॉइंट्स हैं डिस्कशन किए जा सकते हैं स्टडी से रिलेटेड, वो सारे हमारे इंफॉर्मेशन शीट के अंदर होते हैं। सेकंड पार्ट इज द बेसिकली दैट इज द वन सिंगल फॉर्म। ओके, दैट इज द इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म कहते हैं उसको, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अगर आप बोलोगे तो वो केवल एक ही डॉक्यूमेंट है। ओके, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, बट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स। वन इज द इंफॉर्मेशन शीट and the second one is the consent form. Information sheet, the whole information about the drug and procedure or the research, okay, as well as the staff who are involving during that phase. Okay, कि जो भी स्टाफ इन्वॉल्व होगा, कि ये इन्वेस्टिगेटर है, कि अगर मैं फोन नहीं उठा पाऊँ तो मेरे को इन्वेस्टिगेटर हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, कि आप इनको कॉल कर लीजिएगा। अगर ये भी नहीं उठा पाए तो फिर तीसरा बंदा है, उसका नंबर दिया होता है कि आप इसको कॉल कर लीजिएगा। कि अगर वो भी नहीं उठा पाए तो साला एथिक्स कमेटी का एक बंदे का नंबर दिया होता है कि वो एथिक्स कमेटी का बंदा आपका फोन उठाएगा, कि ड्यूरिंग अगर घर पे अगर आप यहाँ से ड्रग लेके चले जाते हो, फेज में हो, अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आप इन कॉन्टेक्ट
सब्जेक्ट से आप इनको कर सकते हो। ओके, तो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, इन्फॉर्म कंसेंट बेसिकली द कंसेंट विच हैज टू बी साइंड बाय द सब्जेक्ट। ओके, ये पूरा होता है कि पेशेंट साथ में बैठेगा, इन्वेस्टिगेटर साथ में बैठेगा, और भी एसोसिएटेड जो पर्सन्स होते हैं। डे वन मीन्स माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन सारी पेशेंट को पूरी बताई जाती है कि ये सब चीजें हैं हमारी। फिर आखिरी में जब सब चीजें होती है कि हाँ सब की सब बिल्कुल सब ठीक है, नाउ द कंसेंट फॉर्म इज देयर, तो वहां पर पेशेंट का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, उसका एड्रेस लिखा जाता है, मेल है फीमेल है क्या है। ओके, ये सब चीजें कंसेंट के अंदर वो पर्टिकुलर क्लोजेज होते हैं कि आई अंडरस्टैंड ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय द इन्वेस्टिगेटर, कि मुझे पूरी तरीके से सवाल पूछने का मुझे मौका दिया गया, कि मेरे जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर किया गया। ओके, कि ड्यूरिंग द अगर स्टडी में अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो वहां पर मुझे क्या करना है, या फिर वहां पर मेरे साथ में क्या 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 चीजें फॉलोअप हो सकती हैं। ओके, इंश्योरेंस कवर मुझे मिल गया, आखिरी में साइन करता है कि नाउ आई एम एग्री टू पार्टिसिपेट इन द ट्रायल। ओके, तब वो पूरा सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर एट दैट टाइम वहीं पेशेंट सिग्नेचर करेगा, डेट डालेगा, पेशेंट अपना नाम लिखेगा, और उसी टाइम पर जो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटर है वो अपना साइन करेगा, वो अपना डेट डालेगा, वो अपनी नाम लिखेगा। ओके, अब देखो यहां पर एक चीज आती है कि व्हाट अबाउट द, बस 5 मिनट बस खत्म। अब बात आती है कि द पेशेंट, कि जो पेशेंट ऑब्वियसली बात है कि जो लिटरेट है, जिसको सब समझ में आता है। वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट अबाउट द इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, द इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी द सब्जेक्ट लैंग्वेज। ओके, कि जो भी लैंग्वेज वो पेशेंट समझता है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो फारसी है, पंजाबी है, बंगाली है, तमिल है, जो भी लैंग्वेज वो समझता है वो उसी लैंग्वेज के अंदर उसको दिया जाना है और उसको समझाया जाना है और उसी पे सिग्नेचर करवाने। ओके, ये हो गया। अब बात कर रहे थे कि जो लिटरेट है, जो पढ़ा लिखा है, तो उसको तो सब समझ में आ गया कि वो सिग्नेचर कर सकता है कि हाँ मैं ये पढ़ सकता हूँ। व्हाट अबाउट द इलिटरेट पेशेंट? ओके, इलिटरेट पेशेंट में क्या होता है कि एक क्लोज है विच इज रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, देयर इज LAR जो बात कर रहे थे हम, लीगली एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, कि जिसको केवल अंगूठा लगाना आता है लेकिन साइन वाइन करना कुछ नहीं आता है। ओके, तो क्या होगा कि उसके साथ में जो भी उसका लीगल एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो सारी चीजें उस बंदे को जो सब्जेक्ट है वो बताएगा और इन्वेस्टिगेटर दोनों को समझाएगा। ओके, जब दोनों एग्री हो जाएंगे तो वो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अपना थंब इंप्रेशन लगाएगा। ओके, अब थंब इंप्रेशन लगा दिया है तो इसका मतलब ये है कि ना तो वो साइन कर सकता है ना वो डेट डाल सकता है, केवल वो थंब लगाएगा। नीचे उसका कॉलम होता है लीगली एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेटिव, तो जो भी उसका लीगली एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेटिव है वो सिग्नेचर करेगा, वो नाम लिखेगा और वो अपना डेट डालेगा, देन इन्वेस्टिगेटर साइन एंड डेट इट। ओके, देयर इज वन कंसर्न। द नेक्स्ट कंसर्न इज दैट इफ द पेशेंट इज इलिटरेट एंड द LAR इज ऑल्सो इलिटरेट। ओके, कि जब दोनों ही इलिटरेट हैं, कि पेशेंट भी इलिटरेट है, उसको भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, और जो सब्जेक्ट का LAR है, लीगली एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी रिश्तेदार साथ में आया है, उसको भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो अब आप क्या करोगे? सो देयर इज अ वन क्लोज, देयर इज अ टर्म विच वी कॉल द इम्पार्शियल विटनेस। इम्पार्शियल विटनेस क्या होता है? इम्पार्शियल विटनेस इज बेसिकली सोसाइटी में से ही एक कोई बंदा होता है, इट मे बी ए काइंड ऑफ अ सोशल वर्कर, कोई NGO से कोई बंदा हो सकता है, उसको आप साथ में बिठाओगे, दोनों बंदे जो भी उसका रिश्तेदार है, जो सब्जेक्ट है उसको आप बिठाओगे, दोनों कंसर्न आपको वो जो इम्पार्शियल विटनेस है वो सारी चीजें सब्जेक्ट को पूरी तरह समझाएगा कि हाँ कि इसमें ये सब चीजें हो सकती हैं आपके साथ में, ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं, पोटेंशियल बेनिफिट, पोटेंशियल रिस्क। ओके, ये सारी चीजें आपकी बताई जाएंगी। ओके, बताने के बाद में फिर जब इम्पार्शियल विटनेस अगर एग्री हो जाता है तो देन द साइन बाय द इम्पार्शियल विटनेस, थंब बाय द सब्जेक्ट एंड साइन बाय द इन्वेस्टिगेटर और डेटेड बाय द। ओके, फिर ये होता है कि उसको जो साइन एंड डेटेड डॉक्यूमेंट होता है उसकी एक कॉपी जो होती है हमेशा पेशेंट को दी जाती है फोटोकॉपी कराकर, कि भाई ये साइन है कि अगर आप कहीं पर भी आगे जाकर भी अगर आप किसी से डिस्कस करना चाहते हो तो यू आर कंप्लीटली फ्री, वॉलंटरीली फ्री है कि आप एट एनी टाइम आप इस स्टडी को विड्रॉ कर सकते हैं। इस स्टडी में से, इस ट्रायल में, कि हमारी तरफ से या इन्वेस्टिगेटर टीम की तरफ से आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने स्टडी से विड्रॉ क्यों किया। दैट इज योर राइट। ओके, व्हाट आर द आवर राइट? वी हैव टू बी फॉलो आवर दैट राइट, कि वो इंश्योरेंस है, अगर ये सब चीजें होंगी तो वो हम चीजें आपको फॉलो अप करेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल फेज। ओके, समरी, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।